بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی بلوغ المرام میں پچھلی دفعہ الحمدللہ کتاب المیاہ کے بعد کتاب النجاسات مکمل ہو گئی تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی چیزوں کے بارے میں حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جن کے میں تو یعنی واضح طور پہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں نجس ہیں، ان سب کا آپ کو پاک رکھنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جن میں اختلاف ہے، جیسے منی کے بارے میں بات آئی تھی اور دوسری چیزوں کے بارے میں، اور آخر میں حیض کے خون وغیرہ اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جو مکمل ہو چکا تھا۔ اور اگر مکمل کسی کو پورے اس باب کی مراجعہ چاہیے تو وہ پورا دیکھنا پڑے گا، لیکن مراجعہ میں سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو چیز نئی معلوم ہو، نیا فائدہ معلوم ہو، علماء بتاتے کوئی نئی چیز ہو تو اس کو الگ سے لکھ لیا کریں، اس سے اس کو پورا لیکچر سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ نئے فائدہ اس نے لکھا ہوا یا تو جہاں پہ سنا جس وقت اس کا حوالہ لکھ لیں، کیونکہ عام طور پہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ جو درست وغیرہ سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، کوئی نئی باتیں ہوتی ہیں جو کہ جن کو نوٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہوتی ہے، تو ایک نظر میں اس کو دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ نئے باب کو شروع کرتے ہیں، باب الوضو، جی یہاں سے پڑھیں گے باب الوضو۔ باب الوضوء. جی عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على الشقة أمتي الشقة أشق مم. على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء وضوء. وضوء. مم. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وصححه وذكره وصححه صححه مم. في صححه ابن خزيمة ابن خزيمة. وذكره البخاري تعليقا. اچھا اچھا، یہ آپ کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ ہاں ادھر نہیں ہے ذکر البخاری تعلیقا، چلو انشاءاللہ مجھے یاد دلانا، ہاں ادھر کدھر ہے نیچے صحیح فی الموطا، اچھا ادھر نہیں ہے، ہاں کتاب میں ہے وذکر البخاری تعلیقا، تو آخر میں آپ یاد دلانا، اگر ہماری پوری بحث ہوگی تو اس پہ ہی بات کریں ذکر البخاری تعلیقا، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے، اس نسخے میں نہیں ہے لیکن کتاب میں ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ سبل السلام میں دیکھتا ہوں اس میں بھی ہے یا نہیں۔ الوضوء، ہاں ادھر ہے، وصاحب ابن خزیمہ وذکر البخاری تعلیق ہے۔ الحمدللہ، جی باب الوضوء، یہاں دیکھیں باب الوضوء، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ وضوء جو ہے معروف ہے، ہم پہلے بھی لفظ دیکھ چکے ہیں، اور ہم ہمیشہ وضو کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو وضو سے معلوم ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ شرح جو شروع کی خاص طور پر نحو اور تھوڑی عربی زبان سے معرفت کے لیے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ وضو کے بارے میں علماء بتاتے ہیں یہ وضاع سے ہے، وضاع، وضاع کا مطلب چمکنا، یعنی چمک، ہاں جس طرح قرآن مجید میں یہ لفظ آتے ہیں کہ یکاد زیتها یضیء، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، وہ جو آیت نور ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا تیل ہے جو اس میں پڑا ہوا ہے، جو وہ مشکات کے اندر جو کمثل نور کا مشکات المصباح فی زجاجہ، مصباح کے اندر یعنی جو چراغ کے جو تیل ہے وہ بغیر آگ لگی وہ جل رہا ہے، بغیر آگ لگی وہ روشن ہے، تو یوضی کا لفظ آتے ہیں۔ تو وضو جو ہے وہ وضاء سے یعنی چمکنا، اور چمکنا کیوں؟ کیونکہ ایک تو ان اعضاء کو دھوتے ہیں تو وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ جو مشہور حدیث آتی ہے کہ
आखिरत में क़यामत के दिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, आप उनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि उनके चेहरे और उनके हाथ यानी वजू के आज़ा जो होंगे वो चमक रहे होंगे। जिस तरह हदीस का लफ्ज़ आता है, इन उम्मती युदअून यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन अथरिल वुदू। यानी मेरी उम्मत जो है क़यामत के दिन जब वो बुलाई जाएगी तो ऐसा होगा कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे और उनके हाथ पांव चमक रहे होंगे वजू की वजह से। तो उसी से चमक आता है, वुदू व दुआ से। ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले देख लिया, तो शुरू में बहस हुई थी कि वुदू जब हम बेदम्मिल वाव पढ़ते हैं तो उससे क्या मुराद होते हैं? वो जो, पूरा दिमाग से पढ़ेंगे, दिमाग से बोले ना आपने। हाँ, वाव तो पूरा वुदू है ना, जो वाव जो पहले वाला है उसको हम दम्मा के साथ पढ़ें तो क्या मुराद है? जिस बर्तन में पानी लिया जाता है उसको बोलते हैं ना। नहीं नहीं, वुदू, वुदू। दिमाग से था बोल रहे, हाँ दिमाग के दम्मा साथ है ना। बोल। हाँ, शुरू में वुदू, शुरू वाला वाव है ना, आखिर में तो हमजा है। ये हाँ हाँ हाँ, वुजू बोले तो पूरा अमल करने का, हाँ, हाथ अमल पैर करने को फेल पूरा को वजू बोलते करने हैं। का, अमल वुजू करने से का। मुराद फेल फेल हो को, गया। और अगर फेल वाव है। की फतह के साथ पढ़ेंगे वदू। तो वो जो पानी से वजू करना, या हाँ, लोटे वो में लेके पानी पानी वजू मुराद है। करते हैं ना। हाँ नहीं, वो पानी मुराद है पानी, जिससे वो काम होते हैं। पानी यानी बना दे। दूसरे दूसरे अल्फाज में आप ये बोल सकते हैं वो आला मुराद है जिससे वो काम जी। अंजाम दिया जाए। और इसकी बहुत सारी आलम। बहुत सारी मिसालें, जैसे सुहूर और सहूर। सुहूर अगर आप बोलेंगे भी दम में सीन से मुराद सहरी करना। ठीक है। और जी सहूर जी। बोलेंगे वो आला जिससे सहरी किया जाए, यानी सहरी का खाना। ठीक है। जिस तरह आप कसम से वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो उस हदीस के, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि सहरी किया करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, क्योंकि सहरी करने में बरकत है, या तो सहूरी बरकत या तो सहरी के खाने में बरकत है। तो ये दोनों लफ्ज वहाँ पे हो सकते हैं। इस तरह इसके और भी बहुत सारी मिसालें हैं। वजूर है, वजूर है, सऊद है, सऊद है। यानी ये किस्म का वो दवाई होती है जो नाक में चढ़ाई जाती है। तो जब आप उसके पहले हर्फ पे दम्मा पढ़ेंगे इसका मतलब वो फेल मुराद है। और अगर फतह पढ़ेंगे जी तो वो आला मुराद है जिससे वो चीज काम की जाती है, जिसको काम किया जाता है। ठीक है। वुदू तो हमने इसका रुखी माने बता दिया, वदा से यानी चमक से। लेकिन शरीयत में जिस तरह हमने बताया था कि जो माना इस्तिलाह में होता है, यानी शरीयत में जो माना होता है वो लुग़वी माने के जुज होता है। तो शरीयत में इसका माना क्या है? शेख उथैमीन एक इसकी तारीफ बयान करते हैं, वो ये है कि अल्लाह और इज़्ज़त की इबादत करना, अपने मखसूस आज़ा को धोना एक खास तरीके पे। यानी है तो वही जो हम वुजू करते हैं हमेशा नमाज में, लेकिन उसकी तारीफ है। और तारीफ में सबसे पहले शेख किसको लाएं? अत्तअब्बुदु लिल्लाह, यानी अल्लाह वज़्ज़त की इबादत करना। यानी इसमें इसमें ये आ गया कि नियत शर्त है। कोई शख्स ऐसी उसकी नियत नहीं है वुजू करने की, ऐसी बैठ के अपनी ये सारी चीजें धो लेता है तो उसका वुजू सही नहीं है, क्योंकि उसने अल्लाह की इबादत करने की नियत से वुजू नहीं किया। अपना अपनी अपनी तहारत अपना अपना वुजू जो है उसने नियत पे कायम नहीं किया। और इसकी वजाहत इस चीज से होती है कि कुछ कुछ ऐसे अमाल हैं जिनमें नियत शर्त नहीं है। हर अमल में नियत शर्त है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर इंसान की नियत उसमें शामिल ना हो तब भी वो काम पूरा हो जाता है। शेख मिसाल देते हैं तहारत की। यानी अगर किसी इंसान के कपड़े पे कोई नजासत लगी हो, ठीक है, उसके कपड़े पे कोई नजासत लगी हो, और ये कपड़ा उसका कहीं खुले में पड़ा और बारिश हो जाए, उसकी वजह से वो कपड़ा साफ हो गया। हालांकि इसकी नीयत नहीं थी बारिश में रखने की और बारिश के पानी से वो कपड़ा साफ हो जाए, क्या वो कपड़ा पाक होगा या नहीं होगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। पाक हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई नियत उसके साथ वो नहीं था ताल्लुक, लेकिन कपड़ा पाक हो गया, अभी वो कपड़ा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लेकिन बेशतर अमाल जो हैं उनमें नियत शर्त है अल्लाह की इबादत की नियत से। यानी वो वुजू करें और खास आज़ा धोए। आज़ा कितने धोने? चार आज़ा। जिस तरह आयत वुजू जो है मशहूर आयत है, उसमें चार जी आज़ा जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाँ, अपने चेहरे को। चेहरा, हाँ। और बाद में हाथ है, हाँ, हाथ अपने है। हाथ, हाँ ठीक है। फिर आ, आ, सर का मसा है उसमें। सर का, हाँ सर है। और
और पाँव उसके है। पैर पैर है उसके हाँ बाद। उसके पाँव हैं, और पाँव ये है। तो आयत में आए इस तरह, और इसकी पूरी तफसील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से आती हैं। अला सिफत मखसूसा, यानी एक मखसूस सिफत के साथ धोए, यानी जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि जी। वसल्लम ने सिखाया है, जहाँ पे धोना वहाँ पे धोने का काम है, जहाँ पे मसा करना मसा का काम है, और उलमा ने यहाँ पे तरतीब को भी शर्त दिया कि तरतीब के साथ भी होना चाहिए, यानी ये सब चीजें उसमें शामिल आती। तो ये शरी इसकी तारीफ है वुदू की, जो कि उस तरह है। ठीक है, तो हम एराब की तरफ बढ़ते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जी इसका एराब करें। इसका एराब अभी मुझे करने की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं। अन जी, अन अबी हुरैरा था। अन अन हरफ जर है। जी, अभी हुरैरा, अभी हुरैरा, अभी हुरैरा अस्माउल खमसा में से है। नहीं, कौन सा अस्मा खमसा में से? अभी हुरैरा है या कौन सा है? अभी अभी अभी। हाँ अभी है सर, हाँ अभी अस्माए खमसा में से है, ठीक है। और इसीलिए हाँ। और इसलिए इसलिए मजरूर है। और नहीं, इसलिए मजरूर नहीं है, या अस्माए खमसा होने की वजह से मजरूर नहीं है, अन की वजह से मजरूर है। हाँ। अनको से मजरूर है। हाँ, और जर और की अलामत। जर के मतलब या है, नियामत कसरा। हाँ, क्योंकि ये इसमें खमसा में सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें आगे। समसा है। हाँ। हाँ। हुरैर और हुरैरता मुजाफ इलैहि है, ठीक है। अभी की तरफ। हम्म। और हुरैरता रजी अल्लाह तआला अन्हु, नहीं, उसके अन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु नहीं, एराब क्या है हो रहेगा का? ये तो आपने बता दिया, मुदाफ इलैहि, अलैहि वसल्लम। फिर उस वजह से एराब क्या ये है? मुजाफ इलैहि है, ये मजरूर है। मजरूर है, ठीक है। और हाँ। जर की रजी अल्लाह अलामत, तआला अन्हु। जर की अलामत क्या है? जर के फत्ता नियामत अल कसरा है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ममनू मिन सरफ, ममनू हाँ मिन ममनू सरफ मिन है। सरफ है। और आलमियत दो। है। और हाँ, और और मोनस की मुसाबत रखता है। तानीस है। ता, हाँ, तानिस है। अलमियत और तानीस का सीधा है, इसलिए ठीक है, हाँ सही हो तानिस गया। का शेर। तो ये एराब आपने याद रखना है इसमें, बिल्कुल ठीक है। आगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वाज़ेह है, जार मजरूर और लफ्ज़ जलाल जार मुदाफ मजरूर है। इलैह, ये तो वाज़ेह हो गया, ठीक है। क़ाल लौला। अच्छा, लौला जो हुरूफ लो। वगैरह की बहस है, ये हमने नहीं पढ़ी, तो इसके एराब को हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बारे में जो ज़रूरी मालूमात वो ये है कि शेख उथैमीन रहमतुल्लाह आमतौर पे अपनी किताबों में नहव पे काफ़ी गुफ्तगू करते हैं, नहव पे थोड़ा सर्फ पे भी। तो लौला के बारे में शेख बताते हैं कि ये हर्फ इम्तिना लिवुजूद है। लौ हर्फ इम्तिना लिवुजूद, इसका माना ये होता है कि किसी चीज की वजूद की वजह से वो चीज ममनू हो गई, किसी चीज की अच्छा। होने की वजह से जिस चीज के बारे में आप बात करें वो ममनू होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं लौला जैदुन लअतैतुका, कि अगर जैद नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास आता, यानी जैद के वजूद की वजह से मेरा आना मना हो गया, ठीक है। और इसी तरह एक 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 हर्फ आता है लव, लव, और लव के बारे में ये कहते हैं कि लव हर्फ इम्तिना ली इम्तिना है। लौला क्या था? इम्तिना ली वजूद, किसी चीज की वजूद की वजह से वो चीज मना हो गई। लेकिन लव जो है वो हर्फ इम्तिना ली इम्तिना है, यानी किसी चीज के ना होने की वजह से वो दूसरी चीज भी मना हो गई। जिसके ना जैसे होने की वजह से दूसरी चीज भी मना हो गई। हाँ, कि वो चीज भी ना हो गई। जिस तरह के हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा पे जो आपने फरमाया था कि लो इस्तकबल तु मिन अमरी मस्तदबर तू, लो इस्तकबल तु मिन अमरी, मुझे अल्फाज पूरे याद नहीं है, लेकिन आपने वहां पे फरमाया था कि अगर मुझे इस मामले का अपना पहले से होता, मा सुक्तुल हदिया, तो मैं कुर्बानी का जानवर साथ में नहीं लाता, यानी ये चीज नहीं पता थी, इसलिए ये चीज भी नहीं हुई, यानी ये ना होने की वजह से इस तरह नहीं हुआ। तो ये दो किस्म के हर्फ हैं, इसके अलावा और भी ऐसे हुरूफ आते हैं जिनकी अलग अलग तारीफ है, लेकिन चूंकि हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा नहव में और सर्फ में अभी तक, तो हम इनमें इतना नहीं जाते हैं। लेकिन लौला का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा ना होता, अगर उर्दू में हम इसका क्या माना करते हैं, अगर ऐसा ना होता, यानी एक चीज है उसकी वजह से इस तरह का मामला किया जा रहा है। जी, लौला अन अशुक्का, अन। अन हरफ नसब है, जो जी। जो 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 फेल पे दाखिल होता है वो।
ठीक है। फिर मुजारे पे, फिर हाँ मुजारे के नसब देता है वो। हाँ, हाँ, नस्ब देते हैं, ठीक असुखा, है। असुखा, हम्म असुखा, असुखा में फेल फाइल दोनों हैं। हम्म और असुखा, असुखु होना था, वहाँ पर खा के ऊपर फतह इसलिए आया आन की वजह से। आन की वजह और से, ठीक है। अशुक्का ये वाहिद मुतकल्लिम के लिए हो गया ना। वाहिद मुतकल्लिम के लिए है। हम्म जी, ठीक है। फेल और फाइल दोनों इसमें है। हाँ, फाइल इसी में है, तकदीरन अना। हाँ, तकदीर ठीक है। आना है। हाँ, अला आना, उम्मती ये तो वाज़ेह है। अला आला हर्फ उम्मती, जर है। और अजर पे। उम्मा, उम्मा जो है उसके ऊपर, उम्मा के ऊपर जो कसरा आ रहा है, ये असल में या की वजह से है, लेकिन ये असल में भी मजरूर है, लेकिन ये या की वजह से जी है। तो जो आप बोलेंगे आला की वजह से जो मजरूर है वो उम्मा है। ठीक है, उम्मा। जी। और या जो है ये मुदाफ इलैहि है। या जो है मुदाफ मुदाफिर इलैहि है। महल्लन मजरू महल इसका जर है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मबनी अल सुकून है। मबनी अल सुकून, मबनी अला क्योंकि शुक्र। मबनी अल सुकून है यहाँ पे उम्मती, क्योंकि यह मुतकल्लिम है। ठीक है, और आला की वजह से जो जर आ रहा है वो उम्मा पे आ रहा है, लेकिन जो ता यहाँ पे है, ता के नीचे कसरा जो है, वो आप बोलेंगे ये या की मुनासिबत की वजह से, नहीं तो असल में भी ये मबनी अलल मबनी माजर दूसरा ही है, मजरूर है, मजरूर है जी। मजबूर है। ठीक है, ठीक है। लअमरतुहुम, अला उम्मती, अमर, लअमरतुहुम। अमर तू, हम्म, अमर तू हम, पहला जो लाम इसमें अमर, है, लाम। अमर। हाँ, पहला जो लाम इसमें है, जी जी। वो मैं आपको बता दूं, वो पूरा लाम जो है वो ताकीद के लाते हैं। क्योंकि हमने कुछ ताकीद लाम के। देखे हैं, लेकिन ये लाम हमने नहीं पढ़ा। ये लाम जो है ये ताकीद के लिए आता है। हाँ, जो कि आमतौर पे फेल मुदारे पे भी दाखिल होता है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि ये फेल मादी पे दाखिल हुआ है, लेकिन उसमें ताकीद का माना पैदा कर रहा है। जी, आगे अमर तुम। अमर, अमर तू हम, अमर तू में फेल फाइल, अमर तू हम फेल फाइल है दोनों कौन उसमें। कौन सा अमरा, तफसील करें, अमर, कौन कौन सा फेल अमर, कौन सा है और फाइल अमर कौन फेल, सा? हाँ, अमर अमरा। फेल है। अमरा और फेल मादी है। तूफा, अमरा, अमरा, और हाँ, अमरा अमरा फेल फेल मादी है। माजी है, अमरा हम्म, फेल माजी है। हाँ। मबनी अल फतह है, एक कौल हम्म, के मुताबिक। हाँ, और दूसरा कौल जो शेख हुसैन ने पूरा इख्तियार कौल किया। दूसरा कौल मबनी अल सुकून है। हाँ, क्यों मबनी अल सुकून क्यों है? लित्तिसाली ही, लित्तिसाली ही। लितिशाली है। हाँ, क्यों मबनी अल सुकून क्यों हो गया यहाँ पे? क्योंकि फेल मादी हमने देखा था, एक कौल ये है कि हमेशा मबनी अल फतह होता है। क्या मबनी हाँ फतह होता है? हाँ, मबनी अल फतह होता है, लेकिन कुछ हालात में भले ही सुकून आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये चार हरकत से मुतवालियत उसे बचने के लिए है, लेकिन है मुबनी अल फतह। लेकिन जी जी। दूसरा कौल शेख फतेमी जो कहते हैं, जो कि आसान है, वो ये है कि मबनी अल सुकून होता है किस हालत में? जबकि जब उसके साथ फाइल लगा जुड़ा हो तो। नहीं, ये फाइल का नाम आपको बताना पड़ेगा। फाइल तो वो हालत है, लेकिन यहाँ पे जो फाइल है जी वो जी क्या बन रहा है? फाइल तो वो हालत है। फाइल तो जैद भी बन सकता है, अना भी बन सकता है, दमीर भी बन सकता है। जी 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 हाँ, जी जी जी। यानी ये जब वो जोड़ेगा दमीर रफ़े मुतहरक से, दमीर रफ़ा मुतहरक से, मुताहिर। यानी दमीर हो और रफ़ा के महल में हो और मुतहरक हो। मुतहरक से क्या मतलब? साकिन ना हो, या तो उस पे ताकि फतहा ना हो, हो। कसरा हो, दम्मा हो। ठीक है, साकिन ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे अमरतू, अमरतू में ये दमीर रफ़ा मुतहरक है था। अमरता, अमरती, ये सब दमीर रफ़ा मुतहरक है। अमरना, ये सब दमीर रफ़ा मुतहरक है। तो इन हालतों में जो दूसरा कौल ये है कि फेल मादी जो है वो मबनी अलल मबनी अलल सुकून हो जाएगा, इत्तिसाल ही बिदमीर रफ़ मुतहरक। ठीक है, तो ये फेल हो गया और फाइल हो गया। ता जो है आपका फाइल है, मबनी अलल दम फी महल रफ़। ठीक है, और हम हम, फिर वो मफूल भी है यहाँ पर। ठीक है, मफूल भी हो गया, मबनी अलल, मबनी अल फतह, हाँ, नसब, मबनी अलल सुकून, मंसूब। मबनी अलल सुकून हम मबनी अल सुकून था। फी हाँ जी महल्ली जी। नसब, मबनी अल सुकून, फी महल्ली फी नसब। महल नसब। इसमें थोड़ी बहस है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हम ये पूरा हम कोई मफूल ले लेंगे। उलमा ने बताया कि जो मफूल है वो सिर्फ हाई है, और मीम जो है वो जमा के लिए हाँ, है, लेकिन वो फिर माकी। इब्तिदाई तौर पे थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, तो हम पूरा हम को ही मफूल यहाँ पे ले लेंगे। हम पूरा मफूल है मबनी अला सुकून फी महल नसब। ठीक है, बिस सिवा की, बिस्वा, बिस्वा की, बिस्वा की,
मिसवाकी का मतलब क्या? बिस्सिवा की यहाँ पे भी कितने हर्फ हैं? यहाँ पे भी कितने यहाँ पर वो तीन है यहाँ पर। नहीं, तीन नहीं है, बा दो हैं। हर्फ जर है। हाँ, बा बा हर्फ जर हर्फ है, जर है। बिल्कुल सही, और दूसरा बर सिवाक है। हर्फ अस्सिवाक, जर हाँ सिवाक है। अस्सिवाक, सिवाक यानी जी जी सिवाक जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जी जी, मिसवाकी। मिसवाक तो मिसवाक, हाँ। हाँ सिवाक। मिसवाक। हाँ तो बा बा हर्फ जर हो बा गया की और वजह से सिवाक हर्फ जो है जर, हर्फ जर हो गया, ये मजरूर हो हर्फ गया। जर जी। मजरूर हो मा, गया। मा जो है ये भी हर्फ जर है। मा, इसका मतलब वहां भी होता हर्फ जर, है, हाँ जी, वहां भी। इंग्लिश में इसको विद बोलते हैं, विद। विथ हाँ विद। विथ 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 हाँ विथ यानी उसके साथ। जी, मा कुल्ली, इसलिए कुल्ली कुल्ली जो है ये कुल्ली पे। इसम मजरूर है मा की वजह से। ठीक है। माँ की वजह से। हाँ और वुदू। और वुजुहन, माकुल वुजुहन इसकी सिफात है नहीं। नहीं नहीं, मा कुल्ली वुदू। मफुल, माकुल कुल्ली वजु, हम्म, मुजाफ इलैहि है। हाँ मुदाफ इलैहि, इसलिए मजरूर है। जो मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर मजरूर है। होते हैं, और जर की अलामत कसरा जाहिर है। ठीक है। कसरा तो जाहिरा। हाँ, तो इसका माना क्या करेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने फरमाया कि लौला, अगर नहीं होता, अन अशुक्का, अगर नहीं हो। ये बात ना होती, अन अशुक्का के शाक गुजरे, यानी मैं मुशक्कत डालूं, मुशक्कत हो जाए, अला उम्मती, मेरी उम्मत पर ये मशक्कत हो जाए कि ये यानी ये चीज, अगर मैं इस चीज का हुक्म दूं तो मुझे पता है कि मेरी उम्मत के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, मशक्कत हो जाएगा। शक्का यशुक्कु यानी किसी चीज का मुश्किल होना। ला अमरतुहुम, तो मैं इनको हुक्म देता। तो लाम जो है यहाँ पे ताकीद के लिए आया है। पहली फेल मादी जो है उसमें ताकीद का माना पाया जाता है। लाम मजीद ताकीद के लिए, यानी मैं उन्हें जरूर हुक्म देता, बिस सिवा की, किस चीज का? सिवाक मिसवाक करने का। का, मिसवाक करने का, जब माकुल्ली वुदू, इन हर वुजू के साथ, यानी जब भी वो वुजू करें हर। उससे पहले उसके साथ वो, वुजू के साथ वो सिवाक का भी इस्तेमाल करें। तो ये इधर से आपको पता चलता है कि लौला का माना क्या है, कि हर्फ इम्तिनाली वजूद, अभी किस चीज का वजूद है जिसकी वजह से सिवाक मना हो रही है? ये मशक्कत की वजह से। मशक्कत की वजह से, मशक्कत है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म नहीं दिया कि सिवाक हर वुजू के साथ इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अभी इसके फायदे देखेंगे, लेकिन पहले इस पे पूरी बात कर लें। अखरजहु मालिक, इस हदीस की, इस हदीस को अपनी किताब में लाए इमाम मालिक, इमाम अहमद रहिमहुल्लाह, और इमाम नसाई रहिमहुल्लाह अजमईन, यानी ये तीन बड़े इमाम अपनी किताब में लिखा है। वसहहु इब्न खुजैमा, और इस हदीस को सही कहा है इब्न खुजैमा। इब्न खुजैमा जैसे मकान में पहले नाम आ चुका है, ये भी बहुत बड़े आलिम दीन है, और ये मेरे ख्याल में इमाम अहमद के शागिर्दों में से हैं। ठीक है, ये देखें, सही शेख अलबानी ने इस पर सही का हुक्म लगाया है। और इब्न खुजैमा बहुत बड़े आलिम हैं, हत्ता कि इनको, इनके ज़माने में इनको उस्ताद का लक़ब दिया जाता है, उस्ताद। और उस्ताद उस जमाने में उस शख्स को लक़ब दिया जाता था जो हर फन में बहुत माहिर हो। आजकल तो हर किसी को उस्ताद उस्ताद बोल देते हैं, लेकिन उस जमाने में वो होता था जो बहुत बहुत पाए का आलिम हो, और हर फन में वो माहिर हो, यानी तफसीर में, हदीस में, नहव में, सर्फ में, सब चीज़ों में हो, उसको देते थे। तो इब्न खुजैमा को इनाम दिया जाता था। इनकी किताब भी है, किताब तौहीद में इनकी किताब है, मुझे याद पड़ता है। और भी बहुत सारी किताबें, इनकी जो किताब है सही इब्न खुजैमा, जो कि हदीस की किताब है, लेकिन वो बुखारी मुस्लिम के मुकाबले की किताब नहीं है, जिस तरह की लेवल की वो है। और यहाँ पे शेख ने तंबीह लिखी हुई है, वो क्या है? रवाहु मालिक मरफूअन व मौकूफन, इमाम मालिक ने इसको मरफू भी रिवायत किया, मौकूफ भी किया। वलैसा फिल मरफू मा कुल्ली वुदू, और मरफू रिवायत में ये अल्फाज नहीं, मा कुल्ली वुदू, वहाँ पे अल्फाज जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। अच्छा, आखिर में आपने किताब से पढ़ा कि वज़कर बुखारी तालीकन, हालांकि इसका ताल्लुक हमारे नहु सर्फ से नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ आमतौर पे आप आमतौर पे सुनते रहेंगे, तो इसका थोड़ा माना हम कर देते हैं कि ज़कर बुखारी तालीकन, तालीकन का क्या मतलब होता है? कुछ है आपको इसके बारे में कुछ पता है? तारीख मतलब आई थिंक किसी के और के जरिए से रिवायत किया ना। नहीं, तालीकन, वो रिवायत तो दूसरों के जरिए करेंगे, अपने अपने शयूख के जरिए, उनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, पहुंचेंगे, यही सनद कहलाती है। लेकिन तालीकन से क्या मुराद है? तालीकन का मतलब ये होता है कि लटका हुआ, अल्लाह का बोलते हैं ना, लटका हुआ। अल्लाह का, हाँ लटका हुआ। हम्म। हम्म।
ہاں، تعلیقاً کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سند میں سے جو ہے بہت سارے راوی محذوف ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں تعلیقاً۔ یہ سند جو ہے یہ معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کو آپ اس کے اوپر آپ حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس میں راوی موجود نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس سند نہیں ہے تب تک آپ حدیث کے بارے میں کیسے بولیں گے حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ حسن ہے؟ نہیں بول سکتے نا۔ تو یہ لٹکی ہوئی حدیث ہے، اس کے اندر راویوں کا نام نہیں ہے۔ ابھی تعلیقاً امام بخاری نے روایت کیا تو اس کا کیا مطلب؟ جب سند نہیں ہوگی تو ہم کیا بولیں گے کہ بھئی یہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو جب جی ہم جی بخاری دیکھتے ہیں تو بخاری میں مختلف قسم کے علوم ہیں۔ امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جہاں پہ حدثنا سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ہے امام بخاری کے تراجم، تراجم سے مراد انہوں نے جو جو حدیث لائے ہیں اس سے پہلے وہ باپ کا نام لکھتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس کی ہیڈنگ لکھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تراجم۔ اور وہ تراجم عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ انہی میں کوئی نیا فقہی مسئلہ ہوتا ہے جو کہ بہت مشکل سے علماء کو پتہ چلتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین شرح حافظ ابن حجر نے کی ہے۔ بہت سارے علماء سمجھ ہی نہیں سکتے کہ امام بخاری نے جو یہ باپ کا چیپٹر کا نام لے کے آئے اس کا حدیث سے کیا تعلق ہے۔ یعنی جب وہ باپ کا نام دیکھتے ہیں اور حدیث دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے کتاب الوضو ہے نا، ابھی وضو کا سواک سے کیا تعلق ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ حدیث یہاں پہ لانا، لیکن امام بخاری ایسا چیپٹر کا نام لکھتے ہیں اور حدیث ایسی لاتے ہیں جس سے ظاہری طور پہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو بہت سارے علماء بولتے ہیں یا تو امام بخاری سے غلطی ہوگی، یہ ہو گیا، کچھ علماء ایسے لکھتے ہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر سبحان اللہ، جب اللہ نے انہیں توفیق دی، انہیں فتح الباری لکھی، تو ہر جگہ جہاں جہاں پہ امام بخاری کا کیا مقصد تھا وہ لانے کا اور اس میں کیا چھپی ہوئی بات تھی تو اس کو وہاں پہ ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری حدیث بھی لے کے آتے ہیں، ان کے تراجم بھی ہیں، ٹھیک ہے، علماء کے اقوال بھی لے کے آتے ہیں۔ یعنی کوئی آیت کریمہ لے کے آئیں گے، جس طرح بھی کچھ دنوں پہلے میں آیت کریمہ پڑھا تھا کہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، امام بخاری آیت کریمہ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیسے شروع کیا؟ آیت کریمہ لے کے آئے، پھر اس آیت کریمہ میں کچھ الفاظ جو تھوڑے مشکل ہیں، سلف سے ان کا معنی لے کے آئے۔ جیسے التباس کا معنی وہاں پہ تھا او یلبسکم کا معنی تھا، یلبسکم کا معنی وہاں پہ تھا، تو اس کا معنی انہوں نے کیا کہ یخلطکم کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیعہ کا معنی تھا تو اس کا معنی انہوں نے فرقہ، او یلبسکم شیعہ کا معنی تھا تو شیعہ کا معنی انہوں نے فرقہ کیا، یعنی علماء سے نقل کیا، یا نحو کے علماء ان سے نقل کیا۔ پھر حدیث شروع کی، حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبداللہ، یعنی حدیث آگے بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہو گیا۔ تو امام بخاری کی کتابیں مختلف علم ہے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ حدیث آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری کتابوں میں اپنے فائدے ہیں لیکن بخاری میں، اور ایک جگہ امام بخاری کبھی کبھی حدثنا کے لانے کے بجائے یہ بولتے ہیں کہ قال فلان، یعنی فلاں شیخ نے بولا، اور ہو سکتا ہے وہ جو شخص ہے اس سے امام بخاری کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ یہ حدیث منقطع ہوگی، امام بخاری اور ان میں آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یا تو اپنا شیخ کا نام لیں گے کہ میرے شیخ نے یہ حدیث بیان کی، اور بیچ میں جتنے بھی راوی ان کو ہٹا کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث کو پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا تو کبھی کبھی ڈائریکٹ صحابی سے اس چیز کو روایت کریں گے، یعنی قال ابو ہریرہ ایسا ایسا۔ تو اس کو جو بغیر سند کے جو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معلق۔ واللہ ہاں معلق، یعنی اس کی سند نہیں ہے، تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ ابھی آیت کا تو بات ہو گئی کہ بھئی آیت جو ہے وہ تو قرآن مجید سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام بخاری کی تراجم تو بھئی انہوں نے خود کیے ہیں، ان میں راز ہے کیا وہ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن حدیث بھی ہم نے دیکھ لیا، حدیث میں امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، صحیح ہے۔ جہاں پہ امام بخاری مکمل حدیث لے کے آتے ہیں سند کے ساتھ، اپنے سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راوی، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی راوی بیچ میں ساقط نہیں ہے، وہ سند لے کے آتے ہیں، وہ صحیح ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ اب تعلیقاً جو لے کے آئے ہیں جن کی سند نہیں ہے، سند حفظ کی حذف کر دی گئی ہے، 4 یا 5 راوی یا کم راوی، جتنے بھی راوی کی بھلے ایک راوی بھی اگر ساقط ہو تب بھی وہ حدیث منقطع ہوتی ہے، وہ ضعیف ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے تعلیقاً جو لائیں؟ جی، تعلیق کا معنی سمجھ گئے نا؟ جی 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 ہاں، یہ میں لفظ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ جی لفظ یہ آپ بار بار سنیں گے کہ ذکر و بخاری تعلیقاً، اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی سنیں گے بصیغۃ الجزم، ہاں، یا پھر بصیغۃ التمریض،
हाँ, तारीख का क्या माने बताएं मुझे। अगली दफा भी हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि लफ्ज बहुत दफा आता है। ता, तारीख का मतलब ये है कि बीच में रावियों का जिक्र नहीं हाँ रहेगा। हाँ हाँ, बीच में रावियों को हजफ कर दिया। हदीस हाँ, इसलिए वो हजफ किया कर दे दे। इसलिए वो हदीस जो है वो मुअल्लक हो गई, यानी लटकी हुई है, मतलब उसके ऊपर आप हुक्म नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास रावी नहीं है सारे, ठीक है। तो ये हुक्म होगी, तो इसका हुक्म क्या तालीक का, जो इमाम बुखारी और काफी लाए इमाम बुखारी, एक दो नहीं बहुत सारी लेके आए तालीक। जी। नहीं पता। हाँ, इसके बारे में आपको इसकी सनद ढूंढनी पड़ेगी कि इमाम बुखारी जो लेके आए हैं वो कहीं ऐसी तो कुछ नहीं लेके आ सकते अपनी किताब में, सही किताब में वो जो लेके आए हैं उसकी सनद ढूंढनी पड़ेगी। तो अगर उसकी सनद सही है तो वो तालीक, वो जो हदीस सही है तालीक की गई वो सही है। लेकिन अगर उसकी सनद ज़ईफ है हाँ तो ज़ईफ है, क्योंकि हुक्म किस पे लगता है, सनद पे लगता है। ठीक है, इसलिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जिन्होंने मुख्तलिफ उलूम में उन्होंने लिखा है और बहुत कुछ लिखा है, यानी जिस तरह उलमा बोलते हैं कि हाफिज इब्न हजर जैसा जो यानी जो शख्स था, माओ ने जना ही नहीं फिर बाद में यानी उनकी जन तारीख में इस किस्म का कलिमा कहते हैं सुबहानल्लाह। कि उन जैसा जो आलिम पैदा हुआ बाद में किसी माँ ने वैसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। वो थे भी अजीब किस्म के, जिस तरह उनका आदमी अगर पढ़े ना, हमारे शेख तो बोलते हैं कि आदमी उनका जो लिखना पढ़ना देखे ना तो वो हैरान करेगा। वो ये बोलेंगे कि ये तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज था ये आदमी, क्या दिमाग अल्लाह ने उनको दिया था। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है जिसका नाम है तगलीक तालिक। क्या नाम है? तगलीक तकलीफुल तारीफ। तालिक। तगलीक तालिक यानी तालिक का मतलब ये कि ये लटकी हुई है, खुली हुई है, इसके बारे में पता नहीं है। हाफिज इब्न हजर ने आके क्या इसको क्या तगलीक कर दिया, तगलीक का मतलब बंद कर देना। तो जिधर अच्छा। जिधर इमाम बुखारी ने तालीकन जिक्र किया था, हाफिज इब्न हजर इस किताब में उसकी सनद लेके आए और उसके बारे में बताया कि इसका सुबहानल्लाह। हुक्म क्या है, सारी हदीसें लेके आए। अच्छा, अभी तालीकन लाने की क्या जरूरत है? तालीक क्यों लेके आते हैं? जब इमाम बुखारी जैसे आलिम है उनके पास इसकी सनद भी होगी लाजिम, तो क्यों उसको तालीकन लेके आए? तो इसके बारे में उलमा बताते हैं कि असल में इमाम बुखारी का मकसद जो था उस बाब के तहत, वो हदीस लेके आना था वो जो लाते थे, ठीक है। लेकिन उसकी तायीद के लिए कुछ और, उस मसले को समझाने के लिए उन्हें कुछ दूसरी रिवायतें भी लानी पड़ती थी जो इमाम बुखारी की शर्त के मुताबिक नहीं होती थी। इमाम बुखारी की शर्तें बहुत सख्त होती थी, यानी जो हदीस जी। बिल्कुल एकदम सही हो उसको वो लेके आते थे हदसना के बाद। लेकिन कुछ ऐसी रिवायतें होती थी जिनकी जरूरत उनको पड़ती थी लेकिन उनकी शर्त के मुताबिक नहीं होती थी, तो उनको वो इस तरह ताली कर लेके आते थे, यानी अपनी किताब की असल हदीसों में शामिल नहीं करते थे, भले ही वो हदीसें भी अक्सर सही हैं। तो जब आप ये सुनेंगे कि इमाम बुखारी ने इसको तालीकन जिक्र किया है और उसके साथ लिखा है ये कि बिसीगतिल जज्म, कौन सी सीगे के साथ इस्तेमाल किया है? जज्म की सीगे के साथ। जज्म का जज्म के मतलब ये साथ। होता है कि काला, काला अबू हुरैरा, ठीक है। आ, और ज़करा अबू नुआइम मिसाल के तौर पे इस तरह, यानी जज्म की सीगे के साथ कि उन्होंने ये बोला है, ये हो गया, ठीक है। और जब जज्म की सीगे के साथ लेके आते हैं तो उलमा बोलते हैं आम तौर पर इमाम बुखारी अगर जज्म की सीगे के साथ कोई तालीकन कोई हदीस जिक्र करे तो वो हदीस की सेहत सही होती है, उस हदीस की सेहत अच्छा। सही होती है, तालीकन जो जिसकी सनद मज़कूर नहीं है। लेकिन अगर इमाम बुखारी उसे तालीकन जिक्र करें बिसीगतिल तमरीद, बिसीगतिल तमरीद, पहला क्या था? जज्म। जज्म यानी जज्म। पुख्तगी से बोलना कि हाँ भाई उन्होंने ये बोला है। दूसरा जो है सीगती तमरीद, तमरीद जो है मरद से यानी बीमारी से, यानी कमजोर सीगे से अगर बयान करें, जैसे मिसाल के तौर पे कीला से, कीला का क्या मतलब है? कहा गया, हाँ गया। कहा गया कीला। तो अगर सीगत तमरीद से जिक्र करें तो उसमें यह एहतमाल है कि वो रिवायत जो है वो ज़ईफ हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हाँ आप बहुत सुनेंगे, तो ये बहस जहन में रखना जरूरी है उस टाइम कि इमाम बुखारी ने तालीकन जिक्र किया इसका मतलब कि बगैर सनद के जिक्र किया है। अगर सीगत जज़म के साथ उसको लेके आए हैं इसका मतलब वो ज्यादा तौर पे वो हदीस सही होती है। जैसे ये हदीस सही देखें, है। ये हदीस जो अबू हुरैरा से लौला अनशुक्का अला उम्मती उम्मतु बिस्सिवाकी मा कुल्ली वुदू, अब ये हदीस जो है सही है, इमाम बुखारी ने उसको उसका सही कहा है, इमाम नहीं, ये इब्ने खुजैमा ने इसको कहा है, इमाम मालिक इसको लेके आए, इमाम अहमद भी अपनी किताब में लेके आए हैं, और इमाम अलबानी ने भी देखे जैसे मुताखिरीन में से उन्होंने भी उसको सही कहा है। लेकिन हो सकता है ये हदीस जो इमाम बुखारी की सेहत पे ना आती हो, सेहत की शर्तों पर,
حدیث تو صحیح ہے ان کے نزدیک، لیکن جو انہوں نے اپنی صحیح کتاب میں جو جو کنڈیشنز لکھے ہیں کہ میں اس قسم کی حدیثیں لے کے آؤں گا، اس پہ یہ آتی ہی نہیں، اس لیے امام بخاری اس کو لائے نہیں اپنی کتاب میں، اس میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور صیغت جزم کے ساتھ کیا ہے، تو مطلب اس کی صحت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر صیغت تمرید کی طرف صیغت تمرید سے کیا ہے، جیسے قیلہ وغیرہ کے ساتھ یا ذکیرہ کے ساتھ، تو پھر وہ حدیث ضعیف ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا وقت ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہاں پہ اتنی گفتگو ہوگی، یہ حدیث میں جو باقی فوائد ہیں انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔